Yes, Snehal. Hello, welcome to everybody. Hi, myself Sneh Kashyap. So I'm also a qualified chartered accountant. So for today's session, we are going to discuss proposed amendment in GST law under Union Budget 2026, and this session has been organized by our very well CASA. So let me tell you a brief about the CASA is a social affiliation NGO organization whose objective is to impart knowledge, training session, and various social activities for CA members. Again, which is founded by our respective fellow chartered accountant Sumit Garg. So welcome to the CA Sumit sir. Welcome to you. Thank you. So, and this for today's session, it will be taken by our respective Tarun Arora ji, who is a qualified chartered accountant and a commerce graduate, a dedicated GST student since 2015. He has conducted over 600 seminars and webinars at forums like ICA's, GST courses, and CPE seminars. Known for his ability to simplify complex GST topics, regularly represents clients before tax authorities across India. He served as a consultant on the panel of various listed companies as well as large Indian and MNC organizations. So, over to you, Tarun sir, for sharing your knowledge regarding the today's session to us. Snehal, before Tarunji, I would like to add a few points about Tarunji. Tarunji is well-known speaker and always ready to deliver a session whenever asked by CASA. And so, special thanks to you, Tarun Bhai, for giving your precious time whenever we ask for it. और आप सभी का वेलकम वंस अगेन इन दिस indirect tax GST discussion in the Union Budget 2026. Our team expert member आशा जी is also here जो indirect tax GST को देखती है वो भी अपने इनपुट लेटर ऑन दे सकते हैं अब अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी टीम मेंबर्स फ्रॉम कासा हेयर सो सभी का स्वागत है एंड सभी आज डिस्कशन करेंगे कि जीएसटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट 10 मिनट्स वी विल हैव क्वेरी सेशन सो अगर कोई भी क्वेरी आपकी है सभी जानते हैं कि तरुण जी इज वेल नोन एक्सपर्ट इन दिस जीएसटी सो with this I invite Tarun ji to take technical session over to you Tarun bhai. Thank you, Sumit ji. Thank you, Sneha ji. And thank you, Asha ji. And without wasting any further time, सर पहली चीज जीएसटी में कोई एक्सपर्ट नहीं था। इनकम टैक्स 1961 से 2025 का नया 25 का एक्ट आ गया, उसमें आज तक चेंजेस आते रहे हैं, तो जीएसटी तो अभी मुश्किल से 10 साल पुराना है। तो राइट हैविंग सेड सो, वी ऑल आर लर्निंग एंड रन एंड टू दिस एस्पेक्ट की दिस इज एन इवॉल्विंग लॉ। तो आप उसमें सफारी रिट्रीट्स की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी देख सकते हो कि जिसने एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके भी एक ऐसी जजमेंट दी जो ना इस तरफ थी ना उस तरफ थी, और उसने सेम प्लेटर वापसी भेज दिया था टुवर्ड द टैक्स पेयर एंड द एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट। हैविंग सेड सो, आई एम स्टार्टिंग द डेलिब्रेशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड टू ब्रिंग माय स्क्रीन ऑन। सो the first thing about GST amendments in any finance bill from 2016 was कि यहाँ पे नथिंग न्यू विल कम अप। जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी वो प्री हैंड या प्री इन्फॉर्म्ड होंगी, बिकॉज एवरी अमेंडमेंट हैज टू फर्स्ट गो टू द काउंसिल। once the council will approve, then it will be seen that whether any amendment in act is required or rules is required. If the amendment is required in the act, it will go to the finance bill और finally उसकी amendment होगी। but अगर rules है तो वो simultaneously, जो भी एक time gap होता है, 1 महीना 2 महीना after the council meeting, वो issue हो जाते हैं। सो कभी भी कोई सरप्राइज हमें जीएसटी के अंदर नहीं मिलते हैं, दैट इज द गुड पार्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग,
फाइनेंस बिल की जितनी भी अमेंडमेंट्स होती है जनरली दे कमेंस फ्रॉम 1 अप्रैल, या जिस दिन बजट डे होता है, कस्टम्स वगैरह जहाँ पे टैक्स रेट्स के चेंजेस आते हैं, तो वो 1 फरवरी से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं. Only with regards to GST, there is a specific statement that the amendments, ये मैंने सबके सामने प्लेस भी कर रखी है फर्स्ट पेज पे, that the GST amendment shall come in force from the date when it is actually notified by the government. And why it is so? Because this amendment will also require a corresponding change in the SGST acts. तो जब तक सारी स्टेट्स अपने जो अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहां पे ले जाके इसको अमेंड नहीं कर देती है, तब तक अक्रॉस इंडिया मेरा जो लॉ है वो सेम नहीं होगा. इसीलिए थोड़ा सा टाइम गैप जीएसटी अमेंडमेंट्स के लिए रहता है. Now coming on to the amendments in finance bill, so broadly there are four types of amendments. सबसे पहले है postal discounts, then refunds के अंदर है, refunds में there are technically two amendments. Then most important intermediary के अंदर एक change आया है, the place of supply of intermediary, and lastly national appellate authority for advance ruling एक concept है, वो जब हम इस टॉपिक पे आएंगे we will understand and try to dissect. अब ये चार अमेंडमेंट व्हेन वी सी इट, वी फील कि ये बहुत छोटे इम्पैक्ट्स हैं. लीगली आई वुड से इसके बहुत रेपरकशंस नहीं भी होंगे, बट वंस वी गो इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, वी सिट इन द सीट्स ऑफ द टैक्स पेयर, सब इनके जो अमेंडमेंट के कॉन्सेप्ट हैं या अमेंडमेंट्स के इम्पैक्ट है, दोज आर वेरी वाइड और इतने कंपेलिंग है दैट मतलब प्लेथोरा ऑफ चेंजेस मे बी रिक्वायर्ड, और ईज भी बहुत जगह पे हुआ है. तो स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इशू जहां पे चेंज आया है पोस्टल डिस्काउंट्स, दो सेक्शन में इंपैक्ट आया है, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 34(1). सेक्शन 15 में भी इट इज स्पेसिफिकली सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी. अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो एग्जिस्टिंग लॉ है, और जो ब्लू वाला पोर्शन है सिर्फ वो चेंज हुआ है और उसको रिप्लेस किया है एक नए प्रोविजन से. ये अमेंडमेंट कब से इंपैक्ट आएगी? देन इट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. सो अभी जो ये चेंज है हम इसको समझते हैं. तो ये एग्जिस्टिंग लॉ है, मैं पूरा 15(3) नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक बार उसकी हेडिंग पढ़ लेता हूँ. द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट. सो डिस्काउंट इंक्लूड नहीं करना वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर. यानी मेरी टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए का डिस्काउंट है, तो देन 10,000 रुपीज विल नॉट बी पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू. 10,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा. उसके दो सिचुएशन है डिस्काउंट के. सब क्लॉज ए डील्स विद इफ इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई. जब मैंने इनवॉइस पे 10,000 रुपए रिड्यूस कर दिए, 1 लाख माइनस 10,000, आई सेड टैक्सेबल. हाँ तरुण जी, आपकी आवाज चली गई. आई थिंक उनके यहाँ पे कनेक्शन का इशू है, कोई आ जाएंगे अभी. ओके. तरुण जी ने जीएसटी में भी कई सारे चेंजेस को माइन्यूटली एनालाइज किया हुआ है. और तरुण जी के बोलने के बाद ना किसी और को इनपुट देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है वैसे. पड़ती नहीं, राइट. वो बिल्कुल ही ऐसे क्लियर बता देते हैं. एक्चुअली जीएसटी का बजट अब कई बार आता है साल में ना, तो इसलिए पहले आता जैसे ही रहता कि है. जब बजट आता था तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस हुए, क्या चीज़ महंगी होगी सस्ती होगी, इस पर इनपुट्स आते थे. तो आज की डेट में कुछ चीज़ खत्म हो गई क्योंकि पूरे साल ही अप डाउन होता रहता है. ये भी कुछ चेंजेस जो आए हाँ. हैं, कुछ पोजीशन काफी क्लियर किए, खास तौर से भी वो वी विल डेफिनेटली डिस्कस इंटरमीडिएरी वाला जो पॉइंट है. दैट इज इम्पोर्टेंट. जीएसटी में एक चीज और अपने को देखने की रहती है कि ऐसा नहीं कि फाइनेंस एक्ट हो गया, मतलब एक्ट बन गया तो आपका इम्प्लीमेंट भी हो गया. जीएसटी में नोटिफिकेशन की वेट करना इज ऑल्सो
नेसेसरी कि वो कब से इफेक्टिव कर रहे हैं उसे। इफेक्टिव कर रहे हैं। एक बार आप कॉल कर लो सुमित मैं जी। कॉल कर रहा हूँ उनको, शायद कहीं ऐसा तो नहीं है। यस, आ गए, ही ज्वाइंट। I'm extremely sorry. Suddenly the internet went down. ओके, So sorry. I'm प्रॉब्लम। coming back. I hope my screen is visible again. यस यस तरुण भाई, यस। Okay. So I'm saying, I'm first reading what is the precise law as on date. So it says that after the supply has been effected, अभी वी आर रीडिंग कि डिस्काउंट पे कब टैक्स नहीं लगेगा। यानी क्योंकि मैंने ओरिजिनली पूरे 1 लाख रुपए पे टैक्स दे रखा है, आई एम दी सप्लायर, आई एम इशूइंग अ क्रेडिट नोट। अब मेरे को फ्यूचर में अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना है, तो मैं कब अपना आईटीसी रिवर्स कर सकता हूँ? इफ सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए entered into at or before the time of such supply, and that agreement should have been entered before or at the time of supply, and specifically linked to the relevant invoices, and the discounts should be specifically directly linked with the specific invoices against which it has been issued. And the second condition is input tax credit as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient. तो पहली कंडीशन थी कि मेरा एग्रीमेंट होना चाहिए, प्री सेल एग्रीमेंट होना चाहिए, इनवॉइस के साथ लिंक्ड होना चाहिए। सेकंड इज कि आईटीसी जो है वो मैंने रिवर्स कर देना होना चाहिए। Now what the new law says, or the proposed law say, it says that after the supply has been effected, if for such discount a credit note has been issued by the supplier, एग्रीमेंट की नीड नहीं है, इनवॉइस के साथ लिंकेज की नीड नहीं है। एग्रीमेंट चाहे पहले हो बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द कंडीशन? द क्रेडिट नोट मस्ट बी इशूड। सेकेंड कंडीशन सेम है, अगर आप अपना आउटपुट कम कर रहे हो, ऑब्वियसली सामने वाले को आईटीसी तो अपना रिवर्स करना ही पड़ेगा। एंड now the important thing is everything should be in accordance with the credit note issued in terms of section 34। आज से पहले यहाँ पे सेक्शन 34 की रेफरेंस कभी भी नहीं थी, लेकिन वी ऑलरेडी एज्यूम्ड कि सेक्शन 34 यहाँ पे इनबिल्ट है। यानी मेरे को 24-25 का जो क्रेडिट नोट है अक्टूबर तक इश्यू करके 30 नवंबर तक उसकी रिपोर्टिंग करनी थी। सो इफ आई समराइज दिस, so earlier pre-supply agreement was required, which is not required now. Linkage with invoices was earlier required, now it is not required. ITC reversal by recipient is required in both the cases. Credit note issuance, earlier it was being assumed and everyone was complying with on the basis that this is logical, मतलब वो logical interpretation भी we were already doing। अब उन्होंने expressly provide कर दिया। अभी इसके क्या impact जाएंगे we will see। बट सेक्शन 15(3) के साथ ही द नेक्स्ट चेंज दे ब्रॉट वाज सेक्शन 34। अभी हम एग्जिस्टिंग लॉ देखते हैं तो वहां पे वो बोलता है क्रेडिट नोट कब कब इशू हो सकता है, तो मैंने 3 डिफरेंट कलर्स में लिख रखा है। सो द क्रेडिट नोट कुड हैव बीन इशूड इफ द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स इज एक्सेसिवली चार्ज बाय द सप्लायर। 1 लाख की जगह गलती से 1,01,000 लग गया, तो दैट इज एक्सेस अमाउंट हैज बीन चार्ज। सेकेंड इज वेयर ही इज रिटर्निंग द गुड्स, वो गुड्स जो है वो रिटर्न कर रहा है। और तीसरा है अगर जो मैंने गुड्स या सर्विसेज दी वो डेफिशिएंट है। सो एज ऑन डेट अ क्रेडिट नोट कुड हैव बीन इशूड ओनली इन 3 circumstances: excess amount has been charged, the goods are being returned, and lastly if there is a deficiency। now in the proposed law जो ओरिजिनल 3 थी, एक्सेस, रिटर्न, डेफिशिएंसी, उसके साथ दे हैव आल्सो स्पेसिफिकली लिंक्ड और वेयर अ डिस्काउंट रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 15(3)(b। यानी अब उन्होंने बिल्कुल उसको पैक कर दिया है, लीगली एक्सप्रेस आउट कर दिया है कि दैट फॉर अ क्रेडिट नोट टू बी इशूड, फॉर अ क्रेडिट नोट टू बी इशूड इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको सेक्शन 34 की टाइम लिमिट्स में करो, एंड उसकी जो भी कंप्लायंसेस है वो वहां पे ट्रिगर हो जाए। सो अब इसके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या हुआ? प्रैक्टिकली मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा 34 के अंदर, रेसिपिएंट अपना आईटीसी रिवर्स करेगा,
और इसके लिए मुझे कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं देनी, बिकॉज जब सप्लायर अपना GSTR 1 में क्रेडिट नोट इम्पोर्ट रिपोर्ट कर रहा है, रेसिपिएंट के पास वो क्रेडिट नोट जा रहा है, रेसिपिएंट इज आइदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। अगर एक्सेप्ट हो गया इट मींस ही इज ऑलरेडी रिवर्स हिज ITC, मेरे को जस्टिफिकेशन देनी ही नहीं। अगर उसने रिवर्स कर दिया है तो मेरी आउटपुट लाइबिलिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है। तो नाउ द गवर्नमेंट हैज मूव्ड फ्रॉम सीकिंग क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द सप्लायर डायरेक्टली कि आपका सेक्शन 34 की कंप्लायंस सिस्टम में सिस्टमैटिकली आपकी कंप्लीट हो जाती है, जस्ट बिकॉज IMS अब इंप्लीमेंट हो चुका है। द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द बिजनेस आर इन पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। सबसे पहले ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी बिजनेसेस को। कैसे मिलेगी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। एंड लास्टली, लिटिगेशन और डिस्प्यूट्स बहुत कम होंगे, क्योंकि पहले हर क्रेडिट नोट के ऊपर वो बोलता था एग्रीमेंट दिखाओ, कैसे आपने सामने वाले को कम्युनिकेट किया था, एग्रीमेंट साइन नहीं हो रखा, रिटर्न होना चाहिए, ईमेल्स नहीं चलेंगी। वो सारे जो डिस्प्यूट्स है अब वो कहीं ना कहीं पे खत्म हो जाएंगे। अब इस अमेंडमेंट का जो मेजर इम्पैक्ट आएगा वो आएगा to some industries and sectors which were earlier not issuing any GST credit note. वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट कर रहे थे, एंड द रीजन वाज दे वर सेइंग दैट वी देयर इज अ कंडीशन इन द अर्लियर लॉ दैट द टैक्स पेयर हैव रिवर्स द ITC, और एग्रीमेंट्स वगैरह सब कुछ होने चाहिए। तो वो बोला कि मेरे एग्रीमेंट्स की टेस्टिंग होगी, सामने वाले का ITC मैं कैसे गवर्न करूंगा। तो उन सिचुएशंस में क्या होता था, एज्यूम करते हैं कि एक टैक्सेबल सप्लाई ओरिजिनली होती है 1 लाख रुपीज पे, ITC 18,000 का, टोटल वैल्यू 1,18,000, दिस इज व्हाट आई एम परचेजिंग। और मुझे पहले से पता होता है कि मैं जो ये टोटल परचेज है इसमें मुझे 5% का डिस्काउंट, टर्नओवर का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। सो मेरी इफेक्टिव परचेज वैल्यू वुड बी 90,000 रुपीज, यानी 1 लाख रुपए मैंने अभी मुझे इनवॉइस आया, लेकिन मैं ये टारगेट अचीव कर ही लूंगा। और टारगेट अचीव करने के बाद कंपनी मुझे 5% का डिस्काउंट दे देगी या 10% का डिस्काउंट दे देगी, सॉरी। तो मैं यहाँ पे 10,000 का डिस्काउंट ले लूंगा, इफेक्टिव परचेज प्राइस मेरा 90,000 रुपीज होगा। इस सिचुएशन में व्हाट आई डिसाइड इज, बिकॉज माय लैंडिंग प्राइस इज 90, आई डिसाइड मैं इसको 95 में सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कंपटीशन में भी रहना है। सो मैंने 90 को 95 में सेल आउट किया। जस्ट 1 मिनट। सो आई सोल्ड इट फॉर 95,000 रुपीज। ये ITC की जगह मेरा आउटपुट हो जाएगा। आई विल चार्ज 17,100 एज माई आउटपुट टैक्स। मैं टोटल 1,12,100 की कलेक्शन करूंगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि मेरा ITC आ रहा है 18,000, मेरा आउटपुट बन रहा है 17,100। इन दोनों के बीच में मेरा ITC एक्यूमुलेशन हो रहा है 900 रुपीज, यानी हर 1 लाख रुपए की परचेज के ऊपर 900 रुपए हो रहा है, विच इज 0.9% ऑफ द ITC एक्यूमुलेशन। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे सप्लायर ने कैटेगोरिकली बोल रखा है कि मैं आपको GST क्रेडिट नोट नहीं दूंगा, मैं कोई भी आपकी रिस्क नहीं लूंगा। अब इससे क्या होता है, वन ऑफ ट्रांजैक्शन होता तो कोई इशू नहीं होता, बट ये ट्रांजैक्शन होती है करोड़ के अंदर। तो अगर यही मेरा 10 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती है तो मेरा ITC जो स्टक होता है दैट इज 9 लाख रुपीज। 100 करोड़ पे 90 लैक्स, 500 करोड़ पे 4.5 CR, एंड 1,000 करोड़ के ऊपर इट इज ऑलमोस्ट 9 करोड़। और ये 9 करोड़ मेरा स्ट्रक डाउन हो जाता है लिक्विडिटी से। आई कैन नॉट क्लेम रिफंड अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मीन्स परचेजिंग एट अ हायर रेट एंड सेलिंग एट अ लोअर रेट। यहाँ पे आई एम परचेजिंग एट 18, सेलिंग एट 18, लेकिन मेरा एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज माय सप्लायर इज नॉट इशूइंग अ GST क्रेडिट नोट। और वो क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो कहता था मेरे को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। नाउ विद IMS कमिंग इन टू द पिक्चर एंड दिस अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 15(3)(b), इट इज वेरी सिंपल। अगर आपका क्रेडिट नोट एक्सेप्ट हो गया है इट मींस ही हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, ही हैज रिवर्स्ड ITC। आपका काम कंप्लीट हो गया, आपकी कंप्लायंस कंप्लीट हो गई। नाउ वी मे सी दैट द सप्लायर्स आर विलिंगली डूइंग दिस। अदरवाइज ये जो अमाउंट तक होने लग गया था तो लोगों ने ये जो 0.9% का अमाउंट है दे यूज टू एड इन दी टैक्सेबल वैल्यू, यानी ये पास ऑन होने लग गई थी कस्टमर को। तो ये तो हो गया जहां पे सेक्टर्स है। उसके अलावा इफ वी केयरफुली एनालाइज एंड सी कि ये कहाँ कहाँ पे और चेंज डालेगा, सो जस्ट एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट।
अगर किसी को अब स्टॉक क्लियरेंस सेल करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक माल भेज दिया अपने सारे कस्टमर्स को जो आगे से B2C को सेल करेंगे, अब उनके पास माल जा चुका है, देयर वाज नो प्री सेल्स एग्रीमेंट। एज्यूम करते हैं मैंने कोक हूं, मैंने कोक की बॉटल्स भेज दी, सडनली पेप्सी ने क्या किया, उसने अपनी जो पेट बॉटल 40 रुपीज वाली थी उसको 20 रुपीज के अंदर निकाल दिया। अब क्योंकि पेप्सी 20 रुपीज में बिक रही है तो कोक 40 में तो बिकेगी नहीं। अब इस केस में मैं कॉम्पिटिटर के प्राइस को मैच करूंगा, तो मैंने कॉम्पिटिटर के प्राइस मैच करने के लिए अपने सारे जितने भी डीलर्स हैं उनको बोला, आप इसको 20 रुपीज का बेचो, मैं आपको 18 रुपीज की इसकी लैंडिंग करूंगा। मैंने आपसे से अभी 30 रुपीज ले रखे हैं, 30 - 18, 12 रुपए का मैं आपको क्रेडिट नोट दूंगा। पहले वो क्रेडिट नोट, क्योंकि ये आफ्टर सेल्स होता था, तो पहले वो क्रेडिट नोट बनते थे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जिसपे आउटपुट रिवर्स नहीं हो सकता था और ऐसे आईटीसी एक्यूमुलेट होने लगता था। लेकिन अब ही वुड बी एबल टू इशू अ जीएसटी क्रेडिट नोट, जिससे जीएसटी का भी नीचे इम्पैक्ट जाएगा और जो लिक्विडिटी मेरी फंसती थी वो नहीं लगेगी। मेरे को फेस्टिवल पे डिस्काउंट देने हैं, माल ऑलरेडी लोगों के पास पड़ा हुआ है और मुझे डिस्काउंट देना है, तो मैं फेस्टिवल के ऊपर डिस्काउंट दे सकता हूँ। मेरे को सिंपल क्या करना है, एक क्रेडिट नोट इशू करना है। और मुझे अब ये भी नहीं बोलना कि किस चीज के ऊपर दे रहा हूँ, मेरे को सिर्फ ये बताना है आपने 50 लाख का माल खरीदा है पूरे साल में, मैं आपको 5 लाख दे रहा हूँ। मुझे डायरेक्टली लिंक नहीं करना किस इनवॉइस के साथ करना है। आई कैन इशू अ क्रेडिट नोट डायरेक्टली कि भैया ये आपका क्रेडिट नोट है। स्टॉक क्लियरेंस सेल हो, वो सारी जगह पे। तो इफ यू सी कि इस अमेंडमेंट से एक बहुत मेजर एडवांटेज, बहुत मेजर फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेसेस को मिलेगी, टैक्स पेयर्स को मिलेगी, एंड दैट वुड बी अ वेरी, जैसे आई वुड से अ ग्रेट पोर्शन और रिलैक्सेशन दैट दी इंडस्ट्री वॉज एक्सपेक्टिंग सिंस लॉन्ग। सर आपकी जो भी क्वेरीज हो ना, आप उसको एक्यूमुलेट कर लो, बिकॉज देर आर ओनली 4 टॉपिक्स। पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और 2 टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, सिर्फ इंटरमीडियरी में हमें टाइम लगेगा। एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक द क्वेरीज फॉर ऑल द 4 टॉपिक्स। सेकेंड इज रिफंड्स। सर रिफंड्स में 2 चेंजेस हैं, एक बहुत छोटा चेंज है और एक चेंज है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट चेंज, और इसमें कुछ इम्पैक्ट ऑलरेडी मेरा अक्टूबर में आ भी चुका है। So we already had a concept of provisional refunds. Those who have already filed refund application, they know that this concept is a theoretical concept which has not been applied at least for the past 5 years. Initially किसी लोगों ने देख रखा होगा, but पिछले 5 सालों में post COVID I have not seen any provisional refund being issued. पहले जो प्रोविजनल रिफंड थे दोज वर एप्लीकेबल ओनली ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पहले जो मेरा रिफंड था, प्रोविजनल रिफंड 90% जो मेरे को विद इन 7 डेज मिलना था, तो प्रोविजनल रिफंड सेज जैसे ही आपने एप्लीकेशन फाइल करी, द डिपार्टमेंट विल एनालाइज वेदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट और नॉट। आफ्टर एनालाइजिंग वेदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट, दे विल इशू द एक्नॉलेजमेंट, and after issuing the acknowledgement within 7 days they can issue 90% of the refund, तो 90% रिफंड वो दे देंगे। बट ये थ्योरेटिकली था, प्रैक्टिकली कभी भी उन्होंने ये रिफंड्स दिए नहीं। तो पहला चेंज उन्होंने अक्टूबर में ऑलरेडी कर दिया, उसको मैं बाद में करूंगा कि ये जो नहीं दे रहे थे उसका क्या हुआ। पहले उन्होंने अब एक्ट में प्रपोजल करके बोला ये जो सिर्फ और सिर्फ जीरो रेटेड में प्रोविजनल रिफंड का कॉन्सेप्ट था, नाउ वी आर इंक्रीजिंग इट इवन इन द केसेस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जीएसटी 2.0 22 सितंबर से जो चेंजेस आए थे वहां पे बहुत सारे चेंजेस, 18 जो 12 वाले थे वो 5 में चले गए थे, 12 से कुछ चीजें 18 में चली गई थी। एंड बहुत सारी जगह पे ये हुआ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खाने पीने की सारी आइटमें कहाँ चली गई, 5 में चलेगी। टेक्सटाइल और जो मेरा फुटवेयर है 2500 से नीचे वाला कहाँ चला गया, सारा 5% पे, लेकिन उनके रॉ मटेरियल वगैरह आज भी 18 के ऊपर है। सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सडनली बहुत इंक्रीज हो गया, और अब जो पहले 5 और 12 7% के डिफरेंशियल हो सकते थे, अब वो हो गए 5 और 18 13% के डिफरेंशियल स्टक होने लग गए। द गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइज कि यहाँ पे बहुत सारा कैपिटल ब्लॉक होगा, तो उन्होंने प्रोविजनल रिफंड की स्कोप को इंक्रीज किया और उसके अंदर डाल दिया कि सर हम आपको इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड भी विद इन 7 डेज ऑफ एक्नॉलेजमेंट दे देंगे।
और फिर वही, अगर 7 दिन में आज तक जीरो रेटेड का नहीं दिया तो इन्वर्टेड का कैसे मिलेगा? उसके लिए व्हाट दे डिड वाज दे अमेंडेड रूल 91 सब रूल 2 इन अक्टूबर 25। अक्टूबर 25 में उन्होंने अमेंडमेंट करी। और 25 में अमेंडमेंट क्या करी, मैं नीचे वाला पोर्शन पढ़ रहा हूँ, एंड आई एम रीडिंग इट वर्बेटम सो दैट एवरीवन कैन फॉलो इट। Amendment in Rule 91(2) of the CGST rules to provide for sanction of 90% of refund claimed as provisional refund by the proper officer on the basis of identification and evaluation of risk by the system. So now the proper officer has to issue the refund, but the identification and evaluation of risk will be done by the system. तो यहां से एक पावर प्रॉपर ऑफिसर की ले ली, उसको बोला कि किस केस में रिस्क है या नहीं है, ये आपको सिस्टम बताएगा. However, in exceptional cases, the proper officer may, for the reasons to be recorded in writing, instead of granting refund on provisional basis, proceed with detailed scrutiny of the refund claim. लेकिन अब ऑब्वियसली सिस्टम ने रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करा, बट प्रॉपर ऑफिसर को नजर आ रहा है कि एक्चुअल में दिस इज नॉट द करेक्ट रिफंड. उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो प्रोविजनल रिफंड ना दे, एंड ही फॉलो द नॉर्मल स्ट्रक्चर. बट इन दिस सिचुएशन नाउ व्हाट विल हैपन, ही विल हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग. उसको रीजंस को रिकॉर्ड करना पड़ा राइटिंग के अंदर. सो अब सर, अब ये वाला जो 91 टू अक्टूबर 25 में आया था, ये ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर भी आ जाएगा जिस दिन सेक्शन 54 पे आएगा. दो गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इशूड अ क्लेरिफिकेशन कि हम फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ये इन्वर्टेड ड्यूटी वालों को भी दे देंगे. अब सर मैं फिर से जा रहा हूं कि प्रोसेस क्या था. प्रोसेस क्या था, मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल करूंगा. डिपार्टमेंट विल वेरीफाई वेदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन करेक्टली प्रोवाइडेड और नॉट. एंड थर्ड स्टेज थी इशुएंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, RFD-02 इशू होगा. अब डिपार्टमेंट को पता चल गया कि ये प्रोविजनल रिफंड आ गया है, तो नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर नॉट इशूइंग द एक्नॉलेजमेंट पर से. मतलब आई हैव फाइल्ड सो मेनी रिफंड एप्लीकेशन इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, ये अक्टूबर से इंपैक्ट हो गया, तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर नॉट इशूइंग द एक्नॉलेजमेंट. वो एक्नॉलेजमेंट ही होल्ड करके बैठ गए हैं. जब तक एक्नॉलेजमेंट इशू नहीं होगी, 7 दिन इशू का ट्रिगर नहीं आएगा. 7 दिन का ट्रिगर नहीं आएगा, उनको रिफंड देने का इशू नहीं आएगा. और 60 डेज भी कब से काउंट होते हैं, जब से मेरी एक्नॉलेजमेंट इशू होती है. वो अलग बात है, वी कैन ऑलवेज गो टू दी कोर्ट कि ये डिलेड इशुएंस कर रहे हैं. तो यहाँ पे दी ऑफिसर्स हैव नाउ फाउंड आउट एस्केप कि वो एक्नॉलेजमेंट्स को डिले करना स्टार्ट कर गए, विच इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट वे. आई थिंक यहाँ पे और रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए सो दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बिफोर द अथॉरिटीज कि एक्नॉलेजमेंट शुड बी ऑटोमेटेड. आप अपना सॉफ्टवेयर के अंदर वो इनबिल्ड कर दो कि दीज डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी अपलोडेड, एंड वंस द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाए. उसके बाद 7 दिन है, उनको 7 दिन में प्रोसेस करना है. आप 7 दिन को 15 दिन कर दो. लेट द ऑफिसर हैव सफिशिएंट टाइम टू वेरीफाई वेदर the documents are complete or not. If the documents are complete, he must issue the provisional refund. If the documents are incomplete, he may issue the uh, 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 show cause notice and follow on the regular process. But at least आप कहीं पे initiative तो लो. Giving the issuance of acknowledgement at the hands of the proper officer is actually not enforcing, और इसके जो benefits हैं वो ground पे अभी नहीं आ रहे. तो this is a very simple law. प्रैक्टिकली कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने ये बोला कि भैया हम प्रोविजनल रिफंड 7 दिन के अंदर 90% दे देंगे, जो ग्राउंड पे अभी तक मैंने होते हुए नहीं देखा. सेकंड एक और चेंज आया रिफंड्स के अंदर, दैट वाज फॉर रिफंड्स लेस देन 1000 रुपीज. सेक्शन 54 सब सेक्शन 14, आई एम रीडिंग इट अगेन वर्बेटम. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन 54 को पूरा ओवरराइड किया. No refund under subsection 5 or 6 shall be paid to the rest to an applicant if the amount is less than 1000 rupees. यानी 1000 से नीचे का रिफंड नहीं देंगे. The proposed law say that कि जो 1000 की लिमिट है, that will not apply for refund applications on goods exported out of India under payment of taxes. यानी आपने LUT यूज नहीं करी, आपने with payment of taxes करी,
So you can export these goods without payment of taxes, और सॉरी विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो आपको इवन 1,000 रुपए वाला रिफंड भी मिल जाएगा। सर तो छोटे टैक्स पेयर जो बाय अपना कस्टम्स एक्सपोर्ट करते थे, मतलब कोरियर के थ्रू एक्सपोर्ट करते थे, सॉरी, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। बट अगेन जब आप ये कर ही रहे थे तो विद पेमेंट वाले सारे ही ले लेते, विद पेमेंट ऑफ सर्विसेज वाले को भी ले लेते, बिकॉज आई एम पेइंग एंड देन टेकिंग द रिफंड। तो it is applicable only and only for goods exported out of India with payment of taxes. For all other export, for example, SCZ with payment of taxes, export of services with payment of taxes, तो 1,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, आपको रिफंड्स नहीं मिलेंगे। दिस अमेंडमेंट आई डू नॉट थिंक इसका कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट किसी बड़े टैक्स पेयर के ऊपर आ रहा होगा, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज छोटे वालों को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। नाउ कमिंग टू द मोस्ट important aspect of intermediaries. So sir, इसको पहले समझते हैं हुआ क्या। तो सबसे पहले the government had said that we will omit section 13(8)(b) of the GST IGST Act. तो this is specifically for IGST Act। 13(8)(b) को हम omit कर देंगे। 13(8)(b) बोलता क्या था? It said that the place of supply of services, so it is dealing with place of supply. The place of supply of the following services shall be the location of the supplier of services. तो यहाँ पे POS क्या होगा? Will be equal to location of supplier of services. Supplier की location को POS बना दिया। Generally it is the place of the recipient और consumption place. या तो recipient की place होती है, consumption की place होती है, बट यहाँ पे क्या बना दिया? Intermediary supplier की खुद की location को ही बना दिया place of supply। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता था सर? अब जैसे ये ओमिशन हुआ, ओमिशन के बाद 13(8)(b) तो खत्म हो गया, अब ये चला गया जनरल रूल में। और जनरल रूल क्या बोलता था? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। जैसे ही 13(8)(b) ओमिट होगा तो मेरा कौन सा रूल लगेगा प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने के लिए इंटरमीडिएरी सर्विसेज के लिए? इट विल बी जनरल रूल। और जनरल रूल क्या बोलता है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब इसको धीरे धीरे करके भी सी। तो पहला सवाल आया कि व्हाट exactly is the scope and coverage of intermediary services. So intermediary services, so it is defined in the law. Intermediary is defined in the IGST Act to mean, I am reading it again verbatim, a broker, an agent or any other person by whatever name code. So simple words के अंदर मैं बोलूं तो middleman, broker, agent or any other person by whatever name called, who arranges or facilitates the supply of goods or services or both or securities. So what he is doing, there is an agent. What is doing? What is the scope he should be doing? He is arranging or facilitating the supply of goods or services between two or more persons. So he is standing in between and there are two other persons. One is the supplier and the other one is recipient. And he is ensuring कि supplier से recipient के बाद supply चली जाए. But does not include a person who supplies such goods or services or both on his own account. लेकिन अगर वो खुद लेके दे रहा है तो नहीं कवर्ड है, वो सिर्फ इंटरमीडियरी वो फैसिलिटेट कर रहा है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं सिंपल एग्जांपल के लिए, तो यानी कमीशन एजेंट जितने भी होते हैं, परचेजिंग कमीशन, सेलिंग कमीशन एजेंट, वो सारे यहाँ पे इंटरमीडियरी में कवर होते हैं। सो व्हाट इट सेज इज देयर इज अ सप्लायर, देयर इज अ रेसिपिएंट। एक इंटरमीडियरी आता है, बोलता है भाई आप इसको माल बेच दो या आप इससे माल खरीद लो, तो वो इंटरमीडियरी बन गया। अब इस इम्पैक्ट को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि इवेंचुअली इंटरमीडियरी के दो ही चीजें आ रही होंगी। या तो मेरी इंटरमीडियरी की इनकम है, यानी या तो मैं खुद इंटरमीडियरी और मेरे को उसकी इनकम मिल रही है, या मैं इंटरमीडियरी को पैसा दे रहा हूँ, वो मेरा खर्चा है। तो देयर कैन ओनली बी टू सिचुएशन फॉर एन इंटरमीडियरी, मतलब जब हम इस अमेंडमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। तो ईदर आई हैव रिसीव्ड इंटरमीडियरी इनकम और आई हैव पेड इंटरमीडियरी एक्सपेंसेस। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडियरी इनकम के साथ। सो इफ आई हैव रिसीव्ड एनी इनकम, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सेक्शन 13 है, इट मींस वन ऑफ द पर्सन शुड बी आउटसाइड इंडिया। इनकम अगर मैं बात कर रहा हूं और मैं टेस्ट कर रहा हूं टैक्सेबिलिटी की, तो इट मींस कि मेरा सप्लायर इंडिया में है जो इंटरमीडियरी सर्विसेज कर रहा है, और रेसिपिएंट इंडिया के बाहर हो। सप्लायर जो है इंडिया में जो इंटरमीडियरी सर्विसेज दे रहा है, और रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है।
तो मैं सबसे पहले चेक करता था, क्योंकि रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को टेस्ट करता था। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आईजीएसटी एक्ट में 5 कंडीशन के साथ डिफाइंड है। पहली कंडीशन कहती है सप्लायर शुड बी इन इंडिया। तो एग्जिस्टिंग लॉ में भी इंडिया में है, प्रपोज लॉ में भी इंडिया में, यहाँ कोई चेंज ही नहीं आया। रेसिपिएंट शुड बी आउटसाइड इंडिया, वहां पे भी कोई चेंज नहीं आया, वो कंप्लाई होता था। थर्ड कंडीशन यूज टू से दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शुड बी आउटसाइड इंडिया। अब मैं इंडिया में बैठ के चाइना वाले का माल ऑस्ट्रेलिया भिजवा रहा था, और चाइना वाला मेरे को उसकी कमीशन दे रहा था, या मैंने इंडिया के स्टूडेंट्स को यूएसए कनाडा भेजा, और यूएसए कनाडा की जो मेरी मेडिकल सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी, वो मुझे कमीशन दे रही थी पर स्टूडेंट के बेसिस में। यानी मैं सर्विसेज तो दे रहा हूँ बाहर वाले को, पेमेंट भी फॉरेक्स के अंदर आ रही है, लेकिन मैं सर्विसेज का नेचर क्या बन रहा था, इंटरमीडियरी। देयर वाज अ सप्लायर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर वाज अ रेसिपिएंट, द पर्सन, द स्टूडेंट्स, मैं उन दोनों के बीच में उसका एडमिशन करा के मुझे कमीशन मिल रही है। तो मैं इंटरमीडियरी क्वालिफाई कर रहा था। इंटरमीडियरी क्वालिफाई करने से सेक्शन 13(8)(b मेरे पे अट्रैक्ट हो रहा था, एंड मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन रहा था, इंडिया। तो मैं थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता था 13(8) की वजह से। अब जैसे ही ये ऑमिट हो जाएगा, मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाऊंगा, क्योंकि अब जनरल रूल लगेगा, एंड जनरल रूल सेज कि द प्लेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो मेरा जैसे ही जनरल रूल लगा, वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन ऑलमोस्ट हर केस ऑफ एक्सपोर्ट में आप कंप्लीट करते ही हैं, कि फॉरेक्स में पेमेंट आनी चाहिए, वो दोनों जगह पे हमने एज्यूम करी कि हो जाएगी। दूसरा, आप अपनी ही रिलेटेड पार्टी यानी अपनी एंटिटी को नहीं दे रहे हो, आपकी सब्सिडरी हो सकती है, आपकी होल्डिंग हो सकती है, बट सेम एंटिटी का ब्रांच ऑफिस नहीं होना चाहिए। सो पहले जो एक्सपोर्ट नहीं बन रहा था, प्रपोज लॉ के बाद वो एक्सपोर्ट बनने लग गया। तो दिस इज अ गुड एडवांटेज। और इसकी एडवांटेज कैसे कंप्यूट करें, तो पहले अगर मैं 10 लाख रुपए की कमीशन रिसीव करता था, तो मैं उसमें 1,52,000, क्योंकि अब फॉरेन जो यूनिवर्सिटी थी या फॉरेन एजेंट, वो बोलता मैं तो आपको ऑल इंक्लूसिव दूंगा, तो उसने तो मुझे 10 लाख रुपए ऑल इंक्लूसिव दे दिए। मैं उसमें से रिवर्स कैलकुलेट करके 1,52,000 गवर्नमेंट को देता था एज जीएसटी। मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता था 8,47,000 रुपीज। अब मेरा रेवेन्यू क्या आएगा, 10 लाख रुपीज। जीएसटी नहीं देना क्योंकि ये जीरो रेटेड हो गई है, तो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख रुपीज ही रहेगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स, मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी 15.25%। मेरी ग्रॉस रेवेन्यू जो इंक्रीज हो जाएगा 15.25% से होगा। एंड वी मस्ट ऑल्सो इंश्योर कि इसकी वजह से मेरे को 152 के ऊपर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो कंपनीज अगर हैं तो उस पर 25.17%। आप 152 के सामने कोई एक्सपेंडिचर नहीं डाल पाओगे, क्योंकि 10 लाख जब आप पहले कर रहे थे तो भी आपके पास ये इनकम आ रही थी, आज भी वही आ रही है। इट इज चेंज इन लॉ। तो ये 152 बेस्ट पार्ट के, यहाँ पे एंटी प्रॉफिट रिंग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपके कस्टमर्स हैं वो इंडिया के बाहर है, उनको शायद इस इम्पैक्ट का पता ही नहीं चलेगा, या धीरे धीरे करके उनको पता चलेगा कि ऐसा चेंज आया और आपकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे लास्टली एक और मेजर चेंज आया, एंड दैट इज इनकम टैक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग। इन ट्रांसफर प्राइसिंग, हमने अगर ये इंटरमीडियरी अपनी ही एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को सर्विसेज दे रहा था, दिस इंटरमीडियरी वाज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो ऑलरेडी उन्होंने बेंचमार्क कर रखा होगा कि ये 8,47,000 पे उन्होंने बेंचमार्किंग कर रखी होगी। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल दैट इंटरमीडियरी जो था वो इंडिया में था, और ये जो 10 लाख रुपीज उसको मिल रहे हैं, ये अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से मिल रहे हैं। तो इसमें से 152 तो टैक्स पे जा रहा था, 847 मेरा पीएनएल का पार्ट बन रहा था। तो मैंने अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग में जो भी कैलकुलेशंस कर रखी होंगी आर्म लेंथ के लिए, वो 847 पे कर रखी होंगी। नाउ दिस विल बिकम 10 लाख रुपीज। यानी आपका ये जो 15.25% का ग्रॉस रिसिप्ट का इंपैक्ट आ रहा है, ये आपको ट्रांसफर प्राइसिंग की आर्म लेंथ प्राइसेस को भी रीटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 15% ग्रॉस रिसिप्ट का सर, इट इज अ वेरी ह्यूज डेल्टा। ये आपकी नॉर्मल आर्म लेंथ प्राइसिंग में ये कैप्चर नहीं होंगी, स्पेसिफिकली इनको इंक्लूड करना पड़ेगा। द एक्सपोजर में बी लेस, मे बी हाई, वट एवर बी द सिचुएशन, बट आप सेम आर्म लेंथ प्राइस सेम मेथडोलॉजी के साथ अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिस इज द
सिंपल थिंग जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर इंटरमीडिएट सर्विसेज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को दे रखी है, तो इस बारी आपको टीपी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। या तो इसमें से कुछ बेनिफिट उनको पास ऑन करना पड़ेगा। अगेन आई एम नॉट अ टीपी एक्सपर्ट, बट ये आपको इम्पैक्ट कंसिडर करके हिट लेना पड़ेगा। मूविंग अहेड, इंटरमीडिएरी के अंदर पहला साइड हो गया इनकम साइड, दूसरी है एक्सपेंस साइड। सो अब मैं क्या हूं, मैं इंडिया के अंदर बैठा हूं, मैंने फॉरेन एजेंट को पैसे दे रहा हूं, अब मैं फॉरेन एजेंट को पैसे दे रहा हूं, तो वहां पे मेरे को क्या टेस्ट करना है कि जो मैंने पैसे दिए क्या वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा या नहीं होगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है, और वो बोलता है, थर्ड कंडीशन बोलती है कि इंपोर्ट विल बी डीम्ड इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होगा देन ओनली इट विल क्वालिफाई एज इंपोर्ट। यहाँ पे जब तक ये सेक्शन था 13(8)(b), तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाज इक्वल टू लोकेशन ऑफ इंटरमीडियरी। लोकेशन ऑफ इंटरमीडियरी वाज से दुबई, क्योंकि वो इंडिया के बाहर था तो ये इंपोर्ट नहीं बना। इंपोर्ट नहीं बना तो मैंने कभी भी आरसीएम नहीं दिया। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, एजेंट दुबई में बैठा है, सर्विसेज मुझे दे रहा है, मैं इंडिया में हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो गया। अब मुझे यहाँ पे आरसीएम देना पड़ेगा। अब अगर मुझे आरसीएम देना है तो इसके दो जगह पे इंपैक्ट आएगा। अगर मैं एग्जेम्प्ट इंडस्ट्री हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हॉस्पिटल हूँ, और मैंने बोला आप मेरे को बाहर से पेशेंट भेजोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा, अब वो जो कमीशन है उस पे हॉस्पिटल को आरसीएम तो पे करना पड़ेगा बट आईटीसी नहीं बनेगा। यानी अब उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 18% से। सेकेंडली, मेरे पास पहले से ही बहुत एक्यूमुलेटेड आईटीसी पड़ा हुआ था, या हर महीने मेरे पास इतना आईटीसी आ जाता है जिससे मेरी आउटपुट लाइबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। आरसीएम बिकॉज इट हैज टू बी पेड इन कैश, तो मेरी कैश फ्लो की या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अब थोड़ी सी इन्फ्लेट हो जाएगी एंड इंक्रीज हो जाएगी। तो सर अभी हमने तीन चीजें करी। सबसे पहले हमने डिस्काउंट करा कि एग्रीमेंट की नीड नहीं है, इनवॉइस लिंकेज की नीड नहीं है, सिर्फ 34 में बनाओ, सामने वाले को आईएमएस में एक्सेप्ट करो, आपकी कंप्लायंस कंप्लीट। दूसरा था रिफंड, प्रोविजनल रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर भी लग गया है। सूनर और लेटर 7 दिन में 90% रिफंड मिल जाया करेगा। 40th अमेंडमेंट और थी 1000 रुपी वाली, कि 1000 रुपए वाला एक्सपोर्ट विद पेमेंट को भी मिल जाएगा। थर्ड था इंटरमीडियरी दो साइड, अगर मेरी इनकम साइड है तो अब वो एक्सपोर्ट क्वालिफाई हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज को कर रहा था तो ट्रांसफर प्राइसिंग का एक बड़ा इंपैक्ट मुझे रीटेस्ट करना पड़ेगा। एक्सपेंस साइड के ऊपर मुझे आरसीएम पे करना पड़ेगा। मेरी इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो कॉस्ट है, अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो शायद वर्किंग कैपिटल कुछ केसेस के अंदर ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाए। लास्ट इज नेशनल एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो सर पहले सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं नीचे जो ब्लैक पोर्शन में लिखा है ना उसको पढ़ता हूं, तब हम जाते हैं। I am reading it again verbatim. Section 101(b), subsection 1, where in respect of questions referred to in subsection 2 of 97, conflicting advance rulings are given by the appellate authorities of two or more states. बस यहाँ पे रुक जाते हैं। यानी अगर दो या दो से ज्यादा एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज ने अलग अलग ओपिनियन दे दिया, मैंने पूछा सर इस पेंसिल का रेट क्या है, चंडीगढ़ बोलती है 5%, दिल्ली बोलती है 18%। यहां पे एक ही क्वेश्चन के ऊपर दो अथॉरिटीज ने अलग अलग आंसर दे दिए हैं। इस केस के अंदर या तो डिपार्टमेंट या फिर टैक्स पेयर कोई भी अपील कर सकता था नेशनल एपिलेट अथॉरिटी को। ये एडवांस रूलिंग की नेशनल एपिलेट अथॉरिटी थी। अभी तक ये एपिलेट अथॉरिटी बनी नहीं, और जिस हिसाब से एडवांस रूलिंग्स आ रही थी अब तो लोगों ने एडवांस रूलिंग परसुएड करना भी बहुत कम कर दिया। इतने कॉन्टेक्स्ट के बाद अब ये जो इंसर्शन हो रहा है इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन एग्जिस्टिंग अथॉरिटी शैल इंक्लूड अ ट्रिब्यूनल। तो सिंपल वर्ड्स में क्या हो गया, क्योंकि अभी तक उन्होंने नेशनल एपिलेट अथॉरिटी नहीं बनाई थी, तो उन्होंने बोला कोई भी एग्जिस्टिंग अथॉरिटी जो है उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, उसमें से ट्राइब्यूनल भी होगा। तो सिंपल वर्ड्स में अब ये बोल रहे हैं ट्राइब्यूनल ही थोड़े टाइम के लिए नेशनल एपिलेट अथॉरिटी का रोल करेगी। और मेरे को लगता है क्योंकि एडवांस रूलिंग अब बहुत कम फाइल हो रही है तो शायद ट्राइब्यूनल के पास ही ये मैटर रह जाएगा कि वही अब नेशनल एपिलेट अथॉरिटी है। यानी जब भी दो अथॉरिटीज कंफ्लिक्टिंग व्यू देगी
तो वो अपील जो है वो ट्रैवलर्स के पास जाया करेंगी, ताकि वहां पे वो फाइनली कंक्लूजन के मोड पे आ जाए. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इन द कमेंट्स आल्सो. एंड सर, नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 चेंजेस जो इस बारी बजट से आए थे. थैंक यू एवरीवन फॉर द पेशेंस हियरिंग. एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द क्वेरीज एंड क्वेश्चन आंसर सेशन. तरुण जी, क्वेरीज में एक बजट से रिलेटेड जो अभी आई है, व्हाट अबाउट फॉर द डिस्काउंट विच कैन बी एज्यूम्ड एज कैश पेमेंट डिस्काउंट? सर, अब आपको नेचर तो डिसाइड ही नहीं करना है. आपको सिर्फ ये बताना है, सॉरी, नेचर में ऐसे नहीं बोलूंगा, डिसाइड नहीं करना है. इफ इट इज अ कैश डिस्काउंट, उसने अर्ली पेमेंट करी थी तो आप क्रेडिट नोट दे देंगे, सामने वाला क्रेडिट रिवर्स कर देगा, एक्सेप्टेबल है. सिर्फ यहाँ पे मैं एक चीज को डिस्टिंग्विश करूंगा. एनी डिस्काउंट विच यू आर गिविंग आउट ऑफ योर ओन विल, वो सारी चीजें ठीक है. लेकिन अगर उस डिस्काउंट के साथ यू आर आस्किंग द अदर पर्सन टू डू समथिंग फॉर यू, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए डिस्प्ले लगा दे, आपके लिए मैन पावर ले ले, आपके लिए एडवर्टाइजमेंट कर दे, वो सारी विल बी अगेंस्ट अ टैक्सेबल सप्लाई. उस पे क्रेडिट नोट नहीं इशू होगा, उस पे आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. बट इन ऑल अदर केसेस, क्वांटिटी डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, कैश पेमेंट डिस्काउंट, वहां सारी चीजें आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी. रिलेटेड टू बजट तो यही वाली क्वेरी थी सर. एंड इसके अलावा किसी की कोई क्वेरी है तो वी कैन टेक ऑन जीएसटी ऑफ कोर्स, क्योंकि तरुण जी बैठे हैं तो हम उनसे कुछ ज्ञान और ले सकते हैं. सही कहा, सही आपने. मैंने पहले ही कहा था कि बजट से रिलेटेड क्वेरीज तो ज़्यादा नहीं होंगी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो किसी की. तो तरुण जी, बाय द टाइम कोई क्वेरी आती है चैट बॉक्स में, तो वुड यू लाइक टू डिस्कस एनी रीसेंट जजमेंट जो कि इन जीएसटी जो कि इम्पैक्ट कर रही हो टैक्स पेयर को, कोई अच्छी जजमेंट आई हो इस तरह की, जो हम जजमेंट तो डिस्कस कर बहुत सकते हो सारी इन आ रिव्यू? रही हैं. जजमेंट्स बहुत सारी आ रखी हैं, उसमें से मैं उस जजमेंट को पर से टेस्ट नहीं करूंगा, पर मैं ये बोलूंगा कि जो बोगस परचेजेस के इश्यूज हैं, या आपके जो हम्म. आईटीसी है बिकॉज ऑफ द सप्लायर डिफॉल्ट, ये अभी खत्म नहीं होने वाला. वी हैव स्टार्टेड सीइंग कि जो पहले हमारी फेवरेबल जजमेंट्स आ रखी थी, अब हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट एक डिफरेंट रूलिंग देने लग गया. बहुत सारी हाई कोर्ट अब ये कहने लग गई है कि जो टैक्स है वो आना जरूरी है गवर्नमेंट की किट्टी के ऊपर. मैं नाम भी आपको ले देता हूँ. अभी तक हम सारे यहाँ पे जो जजमेंट यूज करते थे वो करते थे अराइज इंडिया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सर, अराइज इंडिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सिमिलर लॉ है, और ये हमारे फेवर में है. बट आई यूज टू ऑलवेज से कि सर, हम तो अराइव इंडिया ले रहे हैं, तो लेकिन डिपार्टमेंट हमेशा महालक्ष्मी कॉटन गिनिंग मिल्स यूज करेगा. महाराष्ट्र हाई कोर्ट यानी मुंबई हाई कोर्ट की वो जजमेंट थी, और महाराष्ट्र वैट में उन्होंने बोला था कि भैया सामने वाले को टैक्स पे करना मैंडेटरी है, तभी हम आपको आईटीसी देंगे. अगर उसने टैक्स नहीं दिया तो मैं आपको नहीं दूंगा. उसके बाद अब एक जजमेंट आई ई कॉम गिल्फ की, केरला या कर्नाटका वैट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ई कॉम गिल्फ. उसने कैटेगोरिकली ये बोल दिया कि टैक्स की पेमेंट होना मैंडेटरी है. उसने अराइज इंडिया को भी कंसिडर करके बोला, और उसने बोला अराइज इंडिया दिल्ली वैट एक्ट के जो सेक्शन है 92G उसको इंटरप्रेट करके बनी है. मैं कर्नाटका वैट का सेक्शन जो है उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ. और जो हमारा जीएसटी एक्ट का सेक्शन है, सेक्शन 16(2)(c, की टैक्सेस हैव बीन पेड, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईकॉम गिल्फ की जो जजमेंट है. सो इट बिकम्स वेरी ट्रिकी. लेकिन ईकॉम गिल्फ ने एक बात और बोली है कि लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि टैक्स पेयर के पास क्या डॉक्यूमेंट, अगर विदाउट आयोटा ऑफ डाउट वो प्रूव कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है फिर आप खत्म हो जाएंगे. डिपार्टमेंट जजमेंट्स कैटेगोरिकली आ रही हैं. इनवॉइस, ई वे बिल, और आपका क्या हो गया, बैंक की पेमेंट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट कंसिडर नहीं कर रहे. बोले ये तो बेसिक है, ये तो अगर आप किसी से बिल ले रहे हो तो आपके पास होंगी होंगी. हमें चाहिए एक एविडेंस विच इज मच मोर देन दीज. उसकी कंजम्पशन, उसकी फोटोग्राफ, उसके टोल, उसकी एलआर, उसकी इंश्योरेंस, आपको कहीं ना कहीं पे उससे ज्यादा जाना पड़ेगा. सो अभी जो सबसे ज्यादा मैटर चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे हर तीसरी जजमेंट कहीं ना कहीं पे आईटीसी डिसअलाउंस की, या तो बोगस या फिर नॉर्मल केस.
आई थिंक नाउ वी हैव सम क्वेरीज Yes, इन द yes. चैट बॉक्स, अब उनको ले लेते हैं. If you can read for Taranji. ये हेमंत जोशी से स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ स्टिल वी कैन इशू फाइनेंशियल क्रेडिट नोट. Mm. यस सर, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. इवन टुडे यू कैन इशू अ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा जीएसटी क्रेडिट नोट ही करना है. इट इज योर चॉइस. Ravi ji asking you may light on the MRP, GST on MRP. सर ये एमआरपी वाला जो है ये गुटखा प्लेयर्स वगैरह के ऊपर लगा है, एंड आई एम नॉट डीलिंग विद एनी ऑफ दोस क्लाइंट्स, सो मेरे को इसकी बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, एंड आई विल नॉट ट्राई टू पुश ऑन टू दैट. Client has not maintained proper books and has paid CGST, SGST instead of IGST. How to report this in the GSTR 9? सर इफ दे हैव पेड सीजीएसटी एसजीएसटी इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी, तो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज कि आप आईजीएसटी पे करो. सेक्शन 77 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में उसका रिफंड क्लेम कर लो. द रिफंड विल स्टार्ट जिस दिन आपने उसकी टैक्स की पेमेंट करी है. अदरवाइज अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करोगे तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप आई डालोगे, Hmm. सी और एस में पेमेंट हो रखी है, तो आई में शॉर्ट पेमेंट नजर आएगी और सी और एस में एक्सेस पेमेंट नजर आएगी. तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज कि आप इसको आईजीएसटी पे करिए और सी और एस का रिफंड ले लीजिए. रोहित सिंगल जी आस्किंग, Okay. इंटरमीडियरी इन इंडिया गेट्स सेल्स कमीशन फ्रॉम चाइना सेलर फॉर सेल्स इन इंडिया, विल इट कवर? सर आप देख रहे हो, सप्लायर इंडिया में, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई चाइना, फॉरेक्स में पैसा आ रहा है, हम दोनों अनरिलेटेड है, पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड, एक्सपोर्ट. आप ये मत देखो कि वो गुड्स कहाँ पे जा रहे हैं, वो कंडीशन नहीं है लॉ में. कैन यू प्लीज डिस्कस ऑन एडवाइजरी इशूड ऑन यूटिलाइजेशन? मैम जो ये यूटिलाइजेशन वाला आया, ये ऑलरेडी लॉ का पार्ट पिछले 2 साल से, अब उन्होंने सिस्टम में अब जाके इम्प्लीमेंट किया. इट सेज, इसको आप लॉजिकली समझने की कोशिश करो. गवर्नमेंट कह रही है मेरे पास 3 हेड्स हैं, आई सी और एस. आईजीएसटी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है. पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है. तो गवर्नमेंट कहती है सबसे पहले आप आई का मेरा बैलेंस ही खत्म कर दिया करो ताकि मेरा स्यापा ही खत्म हो जाए. तो वो बोलती है जितना भी आईजीएसटी की लाइबिलिटी है या कोई भी लाइबिलिटी है, सबसे पहले आप आईजीएसटी से ऑफसेट करो, यानी मेरा आईजीएसटी का बैलेंस खत्म करा, क्योंकि मेरा बैलेंस खत्म, मेरे को अपोर्शनमेंट कम करनी है. अब मेरे पास 1 लाख रुपए आए हैं, सारी स्टेट्स खड़ी हो जाती है. मेरे पास 1 रुपए है तो मैं किसी को, मतलब वो लॉजिकली अपना प्रेशर कम करती है, तो बोलती है सबसे पहले आईजीएसटी खत्म करो. उसके बाद वो इशू आया कि उसके बाद क्या होगा. उसके बाद कानून में ओरिजिनली लिखा हुआ था कि पहले सी होगा फिर एस होगा. तो लॉ, मतलब सॉरी, टैक्स पेयर्स ने बोला कि यार आप पहले सी करा देते तो मेरा एस तो एक्यूमुलेट होने लग गया और मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरी 5 करोड़ की सेल हुई, वो इंटरस्टेट हो गई. इंटरस्टेट, मैंने उसके ऊपर आईजीएसटी यूज करके अपना सारा आई यूज कर लिया, सी यूज कर लिया, एस यूज नहीं कर पाया. मेरे पास एस खड़ा हुआ है. अब मेरी इंट्रास्टेट सप्लाई अगले महीने जा रही है. अब मेरा एस का बैलेंस इतना है कि पूरी लाइबिलिटी तो पे हो सकती थी, लेकिन सीजीएसटी में अब बैलेंस ही नहीं है, तो मैं ऑफसेट नहीं कर सकता था. तो लॉ में चेंज कर दिया गया, ये 2 साल पहले ही हो गया था, कि मैं सी और एस को अपनी मर्जी से आईजीएसटी के सामने ऑफसेट कर सकता हूँ. प्रैक्टिकली अब उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है कि आप अपनी मर्जी से उस फिगर को चेंज कर सकते हो. तो नथिंग न्यू, इट इज ओनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल अमेंडमेंट विच वाज बीइंग प्रपोज्ड बाय द डिपार्टमेंट, मतलब in the law. Next is company is not having registration in 1920. Company is in existence since 22-23, but GST department shows the notice and DRC 03 against this. तो अगेन, डिपार्टमेंट ने अगर आपको नोटिस इशू करा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बेसिस या रीजंस लिख रखी होंगी. बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड, तो 99.99% टाइम ये केस तो जुरिस्डिक्शन पे ही खत्म हो जाएगा कि उस पीरियड में आई वॉज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन. तो उस बेसिस पे यू वुड बी एबल टू गेट द इशू क्लियर. बट अगेन मुझे अभी तक नहीं समझ लग रहा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन कि प्री रजिस्ट्रेशन में भी कोई नोटिस इशू हो रखा है. क्योंकि उनके नॉन रजिस्ट्रेशन को नोटिस तो होते थे, या उनकी अनरजिस्टर्ड की असेसमेंट तो देखी है, बट दिस इज समथिंग न्यू. आप इसको अगर एक्चुअल में सारी गलती डिपार्टमेंट की है तो जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड के ऊपर यू विल गेट दी रिलीफ.
Nutan Goyalji is asking one query regarding financial credit note on target incentive received from the manufacturer. He is complying with the provisions as per income tax deducting under section 194R and directly debiting the amount in my legend, but no GST effect on this. सेक्शन 194R डज नॉट मीन कि आपको उसके ऊपर जीएसटी देना ही देना है. जीएसटी अप्लाई होता है वंस इट इज सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट. 194R इंसेंटिव है. आज आशा जी मुझे 50,000 रुपए का कोई गिफ्ट दे दे अपनी मर्जी से, मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूँ, क्या मुझे उसके ऊपर जीएसटी देना है? वो गिफ्ट है. 194R इज एन इंसेंटिव, मुझे उस पर नहीं देना. लेकिन आशा जी बोले तरुण मैं आपको 50,000 रुपए भेज रही हूँ, ये 2 केस कर देना या इनका सबमिशन बना दो, रिप्लाई बना दो, या आपने ये पहले कभी करा था उसके एवज में दे रही हूँ. तो नाउ व्हाट शी इज पेइंग इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी. सो हमें ये देखना है 194R जो दिया गया पैसा क्या उसके पीछे कोई एक्सपेक्टेशन थी. अगर कोई एक्सपेक्ट टर्नओवर, मैं माल खरीद रहा हूँ, मैंने आपके लिए थोड़ी ना खरीदा, मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है, मेरी स्पेस ब्लॉक हो रही है, मैं आपके टर्नओवर डिस्काउंट नहीं, मेरी बिजनेस की नीड थी तो मैंने माल खरीदा. आपने उसके अगेंस्ट मुझे इंसेंटिव दे दिया, टर्नओवर डिस्काउंट दे दिया, तो कोई इशू नहीं है. एंड आई थिंक इसकी इनकम टैक्स में क्लेरिफिकेशन भी आ गई कि टर्नओवर डिस्काउंट पे आपको 194R इंप्लीमेंट नहीं करना, बट अगेन यू हैव टू रीवेरीफाई वो होगा या नहीं होगा. बट मेरा अपना मानना है 194R का मतलब ये नहीं है हर केस में जीएसटी. आपको केस को टेस्ट करना पड़ेगा और फिर टैक्स लगाना पड़ेगा. तरुण जी, मोस्ट ऑफ द ललित, केसेस में ये जो इंसेंटिव्स जो मिलते हैं हमें, ये टारगेट इंसेंटिव होते ही उसी चीज के हैं कि अगर आपने उनसे एक पर्टिकुलर अमाउंट तक की परचेजिंग की तो एक गिफ्ट मिलेगा या एक अमाउंट मिलेगी, उससे ज्यादा किया तो परसेंटेज चेंज. तो एग्रीमेंट ही उस तरह का होता है जो टारगेटेड होता है कि ये करने पे ये मिलेगा. मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप इतने की उनसे परचेजिंग करोगे मैन्युफैक्चरर से. मैं मैं परचेजिंग उनके कहने से कर रहा हूँ. यस. आपका बिजनेस नहीं है माल खरीद के बेचना. नहीं, बिजनेस तो उसको हम अपने उसमें यूज भी करते हैं और उसे बेचते भी हैं, मैन्युफैक्चरर से जो हाँ तो लेते हैं. यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ उसके डिस्काउंट की वजह से ये बिजनेस नहीं किया. राइट. 194R सप्लाई तब बनेगा जब उस सप्लाई उस अमाउंट की वजह से मैं कुछ कर रहा हूँ. मैं ओके. बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में उसने मेरे को टर्नओवर का डिस्काउंट दे दिया, वो तो नॉर्मल है. भाई मैं तो ओके. पहले से ओके. धंधा कर रहा हूँ. लेकिन उसने बोला मैं आपको चाइना भेजूंगा अगर आप 4 दिन के लिए अपने बार मेरा स्टॉल लगा दो. ओके. अब हो गया, अब आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है समथिंग मोर देन व्हाट यू वर अर्लियर डूइंग. ओके. ललित जैन जी, in one case death of a proprietor service provider GST officer is not taking any action on application for cancellation of GST, what is the recourse? सर अगर तो वो एक्शन नहीं ले रहा आप उसके सीनियर को डाल दीजिए. अगर वैट का है तो वहां पे जो भी एडिशनल कमिश्नर्स वगैरह बैठे हैं वहां तो आप कमिश्नर को भी अप्रोच कर सकते हैं और ग्रीवियंस आप डाल दीजिए. सर प्रोसीजरली यू विल हैव टू फाइट बैक विद द डिपार्टमेंट, क्योंकि कैंसलेशन इस केस में आई डू नॉट थिंक कि आप हाई कोर्ट जाएंगे. तो आई थिंक फॉलो अप इज द ओनली केस और वो रख के आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिए. वो नहीं भी कर रहा तो आपको नुकसान कुछ नहीं हो रहा है. तो और ये प्रोसीजरली हिस्टोरिकली हमने देखा है कि अब तो फिर थोड़े से एक्टिव हो गए हैं कैंसलेशन को लेके. पहले तो आज भी 5-5 साल हो गए हैं जो कैंसलेशन पेंडिंग पड़ी थी. व्हाट अबाउट ऑनक्वेस्ट मर्चेंटाइजिंग एंड शांति किरण? सर ये आज भी जजमेंट्स हैं, लेकिन आपको यही देखना है, इसीलिए मैंने बोला शांति किरण आप यूज करोगे, ई कॉम के डिपार्टमेंट यूज करेगा. फाइनली होगा जीएसटी की जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा. हम शांति किरण लेके देखो ये है दो मतलब जिसे मैं बोलूंगा आर्मी आपस में फाइट कर रही है. आप निकालोगे ऑनक्वेस्ट, आप निकालोगे अराइज इंडिया, आप निकालोगे डीवाई बीथल जीएसटी की जजमेंट, आप निकालोगे एलजीडब्ल्यू इन्फोटेक, वो निकालेंगे आप ई कॉम गिल, महालक्ष्मी कॉटन गिनिंग, दोनों करेंगे. फाइनली आंसर तो सुप्रीम कोर्ट करेगा. आई एम नॉट इन अ सिचुएशन जहां मैं ये बता दूं कि 16(2)(c) का क्या आंसर होगा, क्योंकि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने ही उस सेक्शन को दिल्ली वैट के लिए अलग पढ़ दिया है, कर्नाटका वैट के लिए अलग पढ़ दिया और डिस्टिंग्विश कर दिया है. तो मैं कहा मेरी वो अथॉरिटी वो मेरा नॉलेज स्किल लेवल है ही नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जो आंसर वो फ्यूचर में करेगी उसको इंटरप्रेट करूं. बट हमें फाइट करना है. आप मैटर को लाइव रखेंगे, अगर आपने मैटर लाइव नहीं रखा तो यू वुड बी ऑन द बैक फुट. इफ वी फाइल application for cancellation of registration and the application is pending,
सर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, फॉलो अप इज द ओनली ऑप्शन, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे. If e-way bill reaches near expiry date and goods lying with the transporter, then for effecting transport, another e-way bill got generated by transporter again same invoice number. Then will it attract penalty for generation of multiple e-way bills? See, if you can prove that the पहली चीज, मेरे को जितना पता है प्रैक्टिकली एक इनवॉइस नंबर के सामने एक ही ई वे बिल इशू हो सकता है, Yes, दूसरा हो yes. नहीं सकता. बट आई एम एज्यूमिंग कि इशू हो गया बाय फॉर एनी रीजन. वैसे मेरे को लगता नहीं है वो डॉट डूट लगा के अगर किसी ने डॉट कर दिया, स्लैश लगा हाइफन के ही लगा करते दिया, हैं लोग. स्लैश. हाँ, अगर आपने वो कर दिया तो डिपार्टमेंट को ट्रैकिंग होगा, क्योंकि उसके लिए वो डुप्लीकेटेड, मतलब डुप्लीकेट नहीं है, इट इज अ सेपरेट इनवॉइस. बट फिर भी आपको जस्टिफिकेशन के लिए ट्रांसपोर्टर से लेके रखना पड़ेगा कि भैया तेरी प्रेमाइसिस पे ही पड़ा था, तूने ये शिपमेंट नहीं करी, ये डिले हुआ था. अगर उसकी डेट और टाइम की आज ही आप कम्युनिकेशन करोगे तो केस तो 2 साल बाद 3 साल बाद लग रहा होगा. तो यू कैन इजिली कोलैबोरेट, यू हैव द एविडेंस कि ये सिचुएशन हुई थी तो मैंने डुप्लीकेट किया या डुप्लीकेट हुआ है. Next is by Vivek Jindal ji. If we are giving transporter receipt and Kata Parchi in addition to basic documents, which other documents are still needed to give? विवेक जी, इसका ना हर फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा. आपने एलआर दे दी, एलआर जिस बंदे की दी उसके पास जो ट्रक्स थे वो उस समय पे कहीं और थे, तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. तो एलआर देना एक अच्छा प्रूफ है, लेकिन ये सब्सटेंसिव नहीं है. काटा पर्ची आपने बहुत अच्छा जिक्र किया. काटा पर्ची आपकी टेक्निकली जो है, मैं अगर बेस्ट केस सिनेरियो बोलूं तो 3 काटा पर्ची होंगी या 4 काटा पर्ची होंगी. पहली होगी खाली ट्रक की, जो मैं लोडिंग से पहले करूंगा. फिर मैं लोडिंग के बाद करूंगा, ये मैं ओरिजिन पॉइंट पे कर रहा हूँ, यानी 2 काटा पर्ची ओरिजिन पॉइंट की हो गई. फिर दूसरी होगी डेस्टिनेशन पॉइंट पे, पहले लोडिंग के साथ, पहले माल लोडेड है, फिर अनलोडिंग के साथ. तो 4 काटा पर्ची थ्योरेटिकल बनती है. अब आप देखो कि आपके केस में कितनी काटा पर्ची है, नहीं है, क्या सिचुएशन है. अगर मेरी ट्रांसपोर्टेशन हुई है, व्हीकल में हुई है, उसका फास्टैग भी लगा होगा, फास्टैग की हिस्ट्री निकल आती है. फास्टैग की हिस्ट्री से आप दिखा सकते हो कि देखो काटा पर्ची भी है और इसने ये सारे टोल भी क्रॉस करे, अपनी स्टेट से बाहर निकल के जिस स्टेट में डिलीवरी है वहां तक पहुंच गया. तो ये एक एडिशनल एविडेंस आपका क्रिएट करता है. फिर अपने कस्टमर से एक कंफर्मेशन ले लो कि हाँ मैंने ये माल रिसीव किया, फलानी डेट पे किया. अगर वो सैप में एंट्री करता है तो उसकी जीआरएन ले लीजिए. ये सारे एविडेंसेस अब आपको कलेक्ट करने पड़े. नेक्स्ट इज बाय राकेश जी. Supplier in Japan, chemical importer in India, agent in India gets commission in foreign exchange. Whether export for agent. सर एक्सपोर्ट होगा लेकिन जब ये नोटिफाई होगा, आज नहीं है. जिस दिन अमेंडमेंट इंप्लीमेंट हो जाएगी एक्सपोर्ट हो जाएगा. Pranavesh ji, in October 24, when IMS was optional, action was taken in IMS, but 2B was not generated through IMS. Tab then. What will be the implication? सर मेरा मानना ये है 24-25 के लिए जीएसटी या टूबी और आईएमएस के ऊपर आप ज्यादा फोकस मत करिए. जो आपका 8A में डाटा आया है उसके ऊपर आप ध्यान करिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग का पीरियड था, वहां पे बहुत सारे मिसमैचेस रहे होंगे. इवन 25-26 में भी वो मैचेस चल रहे हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा मेच्योर हो चुका था क्योंकि 5-6 महीने हो चुके थे उसको. तो 24-25 के लिए ज्यादा परेशान मत होइए. आप ये देख लो कि आपने जो क्रेडिट लिया है, क्या वो 2B में नजर आ रहा है, क्या वो 8A में नजर आ रहा है. अगर वो आ रहा है तो आपका काम हो गया. नूतन गोयल जी, बट सर कंपनी इज इशूइंग डिस्कस हो सेल्स गया ये. टारगेट बेस्ड की. हाँ जी. आलोक जी, कैन बी इशूज. यस, ऑलरेडी. हमने डिस्कस हाँ कर लिया, सर. हम उसको कर सकते हैं. साहिल साहिल एंटरप्राइजेस एंटरप्राइज. त्रिपुरा है. सर एक बार कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए तो थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा कि एग्जैक्टली exactly कौन सी जजमेंट है. मे बी नेक्स्ट बोगस इज वेदर. बिलिंग. यस. नेक्स्ट ले लें सर क्वेश्चन वो तो अवतार जी का. हर स्टेट में आ रही है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे. मतलब सबसे ज्यादा यूपी के अंदर आ रही है, क्योंकि एक तो वहां पे 2 बेंचेस हैं, लखनऊ और इलाहाबाद. और हर बेंच का मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि वो सेम ही जज एक ही चीज के ऊपर कैसे इंटरप्रेट कर देगा. वेदर ई वे बिल इज कंपल्सरी, अमाउंट exceeds 50,000 irrespective.
सर अगर आप अपनी लोकेशन से कस्टमर की लोकेशन पे भेज रहे हो तो ई वे बिल कंपलसरी है, अगर मोटराइज व्हीकल यूज हो रहा है। 50,000 की लिमिट है। अगर नॉन मोटराइज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रांसपोर्टर को भेज रहे हो तो आपके पास एक लिमिट है और आप पार्ट ए जनरेट करके उसके पास भेज सकते हो। ये अंशुल किशोर जी ने कुमार अपना जी। एडिशनल डाला है इसके अंदर, किशोर किसमें? कुमार जी का। ये अंशुल अंशुल गुप्ता जो ईवे बिल की क्वेरी थी अभी, तो he has हाँ जी। added that e-way bill was generated by transporter from his GST number and not from the GST number of assessee, जो लिमिट तो एक्सपायरी फिर के बाद आपको, था। तो आप उनसे डिक्लेरेशन ले लीजिए कि ट्रांसपोर्टर की गलती थी और उसने फिर अपने रिस्क पे ये सारा चीजें करी। किशोर कुमार किशोर जी, कुमार सेक्शन जी का। 38 is proposed to be omitted, so in your view whether it will have only prospective implication और सर देखो अभी हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोस्पेक्टिव इम्प्लीकेशन के साथ ही आ रहा है। बट इसमें ऑलरेडी जजमेंट्स आ रखी हैं, तो अगर आपको रिस्क लेना है, आपने, आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपने टैक्सेस ऑलरेडी पे कर रखे होंगे जो अपने इंटरमीडियरी है, तो आपको कोई नया टैक्स तो भरना नहीं है, तो आप उसको कंटेस्ट कर लीजिए। आप रिफंड की एप्लीकेशन लगा दो, सारी जजमेंट्स की कॉपी लगा दो, मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो गंवाने को कुछ है ही नहीं क्योंकि टैक्स तो ऑलरेडी पे कर रखे हैं। बट अगर आप उस सिचुएशन में हो जहां पे आप आज भी इसको लिटिगेट कर रहे थे कि नहीं ये एक्सपोर्ट ही है मैं टैक्स नहीं दूंगा, तो थोड़ी सी सिचुएशन आपके लिए फिक्स में रहेगी। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आपके फेवर में जाएगा या अगेंस्ट में जाएगा, बट केस लॉ आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं। उन्होंने बोला है कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि हमें ग्लोबल प्रैक्टिसेस को भी मैच करके चलना, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ग्लोबल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपोर्ट होना चाहिए था, इसका टैक्स वहां पे इंपोर्ट के टाइम पे लगना चाहिए था। हम इंडिया में जो लगा रहे थे वो गलत कर रहे थे। नाउ लास्ट टू क्वेश्चंस वी विल टेकिंग, एक मनोज कुमार सैनी जी का ले लेते हैं। माय सम बिल्स आर आ, शोइंग इन 2A। सर ये मनोज जी इस केस के अंदर ग्रीवियंस रेज कर दीजिए, ये काफी केसेस में आता है। जब 2A में आते हैं 2B में नहीं आते तो ग्रीवियंस रेज कर दीजिए और एक बारी डेट्स चेक कर लेना कि वो जो डॉक्यूमेंट है 11 के बाद ना अपलोड हुआ उनका। विवेक जी, three types कंटिन्यूएशन of में not सर are इनका। but still order department is asking to prove genuine, so how can सर अगेन अब वो तो देखो, हम जो भी डॉक्यूमेंट दे देंगे वो उनके लिए इनसफिशिएंट होंगे। आप ई कॉम गिल्फ की जजमेंट एक बार ही देख लेना, उसके अंदर उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलस्ट्रेटिव बोल रखे हैं, इट इज नॉट कंक्लूसिव। उन्होंने बोला एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए। तो आप जो जजमेंट आपके अगेंस्ट यूज होगी उसी के डॉक्यूमेंट उनके सामने प्लेस करिए कि देखो सर ये डॉक्यूमेंट मैंने प्लेस कर दी। अगेन इट इज अ फैक्चुअल सिचुएशन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से आप यहाँ पे बेनिफिट भी एक्सपेक्ट मत करिए, रिलीफ एक्सपेक्ट मत करिए। बेनिफिट विल कम ईदर फ्रॉम एपिलेट और फ्रॉम ट्राइब्यूनल, उससे पहले यहाँ पे बेनिफिट एक्सपेक्ट मत करिए। मनोज जी लिख रहे हैं ग्रीवेंस ऑलरेडी डन बट स्टिल नो रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। फिर एस्केलेट करना पड़ेगा ग्रीवेंस को बार बार रीओपन करा के, अच्छा, ये तभी कुछ लास्ट इसमें हो क्वेरी सकता है। ले लीजिए हाँ, सुरेंद्र जी की। सूरज ठक्कर जी के हाँ। रिफंड ऑन एक्सपोर्ट्स। Refund on export CIF contract, can department deny refund of IGST paid on freight? सर ये हो रहा है। अगेन इट इज ऑल्सो कि किसी ना किसी को फाइट करके जाना पड़ेगा और तभी रिफंड मिलेगा। ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो CIF के अंदर वो फ्रेट और उसका नहीं दे रहे हैं। एंड विद पेमेंट, सॉरी विद पेमेंट के अंदर तो आई थिंक वो पूरा प्रोसेस हो रहा है, विदाउट पेमेंट के अंदर दे आर रिस्ट्रिक्टिंग। एक बार ये आप रूल देख लेना, इन विथ पेमेंट दे आर प्रोसेसिंग द इंटायर अमाउंट, पूरा दे रहे हैं। विदाउट पेमेंट में वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, टर्नओवर को एडजस्ट करते हैं। With this, I think all query completed, Ashish. यस यस यस, So मैराथन क्वेरी सेशन हो गया ये। wonderful, wonderful session. So a special thanks to Tarun Bhai for your time, precious time. Asahi, please say formal vote of thanks. Thank you, Sumit ji, for this opportunity to thanks. Before I conclude, I would like to extend my sincere thanks to everyone who joined us today. एंड ऑनेस्टली सैटरडे को और जीएसटी की बजट में क्या अमेंडमेंट आई है इसको लेकर के एक्सपेक्टेड नहीं था दैट वी विल हैव मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स। एंड थ्रू आउट द सेशन अप्रोक्सीमेटली 125 पार्टिसिपेंट्स हमारे ऑनलाइन हमें जूम पे जुड़े रहे। तो ये शो करता है कि कासा ब्रांड पे जो ट्रस्ट है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारे आज के स्पीकर हैं तरुण जी, कि इतना इन डेप्थ क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देते हैं दैट एवरीवन वेट कि भाई इनका सेशन हमें लेना है। तो स्पेशल थैंक्स टू आवर लर्नेड स्पीकर तरुण जी।
for giving his time once and again to the CASA. एंड आई ऑल्सो फील प्रिविलेज कि मैं कासा की पार्ट हूँ, टीम मेंबर हूँ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंटली डिलीवर करते रहे हैं क्वालिटी लर्निंग एंड कमांड सच ट्रस्ट अमंग द प्रोफेशनल्स. तो लास्टली आई वुड ऑल्सो आस्क आवर पार्टिसिपेंट्स कि आपके कुछ और सजेशंस हो, आप किस चीज पे और सेशंस चाहते हैं या और क्या कासा कर सकती है अपने प्रोफेशनल मेंबर्स के लिए, तो आप हमें जरूर अपने सजेशंस दें. सबके पास सुमित जी का नंबर होगा. You can connect with us anytime. So thank you once again to all the participants, to our moderator of the day, Sneha Kashyap, Sumit ji and Tarun ji once again. And we look forward to all the participants to join us again on the future sessions. So thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you, Tarunji. Thank you to all participants. Thank Thank you. you. Thank you.